when you want to start any career, means in a software industry, but if you should know how that process starts and ends. So just when you mm, born, at that time, that was your starting point, and when you die, so that is your end point. So this, from birth to death, that is your life cycle, right? Human life cycle. So here, when we want to start any new project, we want to understand the software applications life cycle. So what are the things that we should know? So we should know the SDLC. What is mean by SDLC? Do you know? Software development life cycle. Correct. So software development life cycle, and in that life cycle, there are different stages. So we should know that. And in this module, we are going to cover introduction to SDLC and significance of various phases of SDLC. Why we have to follow that process. So what are the different stages of SDLC? So we should know the significance of each phase. मतलब हमें ये क्यों करना चाहिए? जैसे हमारे लाइफ में हम when we born, after that we go to the preschool, then we go to the high school, preschool, then primary school, then high school, then college, and then we start looking for a professional training, and then we start our job career. Some people will go for a business, some will go for a job. So in this way that life cycle start, and her each stage में हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है ये कब डिसाइड होता है? आफ्टर 10th, after high school, you decide where you want to go, right? So on the basis of 10th, you decide which side or which stream you want to select, and on the basis of that, you decide your further career path. So here also, when you want to start any process or any project, you should know the basic stages of SDLC, and there are different modules of SDLC, and then you can learn those stages, various models of SDLC. Then in the SDLC, software development lifecycle, there are some components. So what are those components? मतलब इसका मतलब क्या है, हमें क्यों यूज करना है, तो ये हम लोग समझ के लेना चाहिए यहाँ पे. सो लिस्ट ऑफ कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. मतलब हमने मोबाइल है हमारे हाथ में, तो मोबाइल को मोबाइल ही बोलते हैं. उसका चार्जर है तो उसको चार्जर ही बोलते हैं. यूनिवर्सल ट्रुथ है ये. कंपोनेंट्स करके हम लोग सिलेक्ट करते हैं, राइट? वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो कंपोनेंट्स यूज करने वाले, उसके टर्मिनोलॉजीज डिसाइडेड है, उसके लोगो, उसको स्टैंडर्ड्स है. सो वो स्टैंडर्ड्स हम लोग समझ के लेंगे. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट कॉमन कंपोनेंट्स, वेयर वी कैन यूज दैट कंपोनेंट्स. सो ये सारा चीज हम लोग समझ के लेने वाले. एंड वेरियस, अंडरस्टैंड द वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स. मतलब जैसे हमें घर के लिए पता है, हमने घर देखा, कौन सा भी घर देखो, फर्स्ट एक तो बंगला रहेगा, बंगलो रहेगा, देन फ्लैट रहेगा, देन पेंट हाउस रहेगा, देन इन रूरल एरिया यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स. सो हट भी रहेगा. सो ये सारा जो है, ये आर दे आर बिल्ट बिकॉज दे हैव सम डिफरेंट आर्किटेक्चर्स. वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी when you want to develop a new project, you should have a architecture. कि what is the need of the software project or software application. On the basis of that need, that application we can create or we can build. जैसे विंडोज है हमारे पास, विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मुझे मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है. तो वो डेवलप करते समय उन्होंने कौन सा आर्किटेक्चर डिसाइड करके किया था. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये होगा. अगर हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में भी अलग अलग काइंड ऑफ बिलिंग काउंटर्स देखते हैं. देन वो काउंटर, कौन से भी काउंटर पे जाओ, आपका आइटम कोड स्कैन करते हैं. वो स्कैन करने के बाद उसका बिल मिलता है, तो बिल सेम ही मिलता है. क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू वन कंप्यूटर, दैट इज
client server architecture. So ये अलग अलग है. I'll explain you each point in detail. So, and if you do not understand, you can pause me and then I can clarify that point as well. Okay. Excuse me. SDLC, Software Development Lifecycle. So this SDLC is a process used by software industry to design, develop and test high quality software. जो भी प्रोजेक्ट आपको करना है उस प्रोजेक्ट के लिए आपको डिजाइन करना है, डेवलप करना है एंड टेस्ट करना है. क्यों करना है ये सारा चीज? बिकॉज यू वांट टू डिलीवर अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. सीधी चीज है, एकदम सिंपल चीज मैं बताती हूँ. आप पेन लेने जाते हो, शॉप में जाते हो, पेन लेना है. आप क्या करते हो? आप पेन लेते समय चेक करते हैं. चेक करते हैं ना. पेन, पेपर, शॉप में पेन लिया तो पेपर भी मांगते हैं. पेन उठा के चेक करते हैं प्रॉपरली वर्क हो रहा है ना उसका. पेन का मेन इंटेंशन क्या? राइटिंग. वो राइटिंग प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप चेक करते हैं. पेन हाथ में होल्ड करने के बाद आपको वो पेन कहीं चुभ तो नहीं रहा है ये भी देखते हो आप. वह स्मूथ होना चाहिए उसका फील. हाथ में पकड़ने के बाद आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए. अगर बहुत मोटा पेन है तो आप पकड़ नहीं सकते हाथ में. अगर छोटा है तो आप इजीली पकड़ सकते हो. वैसे ही अगर आप कुछ कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़े के बारे में भी आप सोचते हो कि ये तुम्हारे साइज का है क्या, ये तुम्हें उसका मतलब उसका जो फैशन है, उसका डिजाइन है, पैटर्न है, आपको पसंद आता है क्या, आपको सूट होता है क्या. ये इतना सारा चीज उसके बारे में सोचते हो जो कभी ना कभी तो फटने वाला है. बट यहाँ पे तो हम लोग जो डेवलप करने वाले हैं वो लाइफ लॉन्ग यूज करते हैं हम लोग. उसमें बाद में चेंजेस आते हैं बट ये जो प्रोसेस करने वाले हैं वो प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए. इसीलिए वी हैव टू follow this SDLC. As why we have to follow? Because we want to get a high quality or good quality results. मतलब अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए. इसीलिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है. Software development life cycle is a framework defining tasks performed at each step in the software development process. मतलब each process जो है, each step है. So this framework is this framework has some distinct task. So you have to follow that task, you have to complete that task at each stage. मतलब requirement gathering, this is the first stage of SDLC. उसमें क्या करना है आपको? रिक्वायरमेंट कैप्चर करने हैं कस्टमर से एंड वो रिक्वायरमेंट सबको समझा के you have to follow that, you have to capture that requirement, analyze that requirement and then you can share that requirement, sign off that requirement and share with the team. So ये जो है, so ये फर्स्ट स्टेज में करेंगे. ऐसे हर स्टेज में कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, टास्क होते हैं. So we can see the SDLC in detail. Okay, before that, it consists of a detailed plan. पहले उसको प्लान क्रिएट करना पड़ता है. So that plan consists of different stages. So how to develop. खाली डेवलप करके चलेगा क्या? वो बाद में मेंटेन भी करना पड़ेगा. देन इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा. इम्प्लीमेंट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में से जैसे हमने घर बनाया, बिल्ड किया घर, उसके बाद एक बार करने के बाद आपको वो ऐसे ही वैसे ही रहना चाहिए क्या? मैंने एक नया घर बनवाया है, उसमें सारा चीज एकदम अच्छा बनवाया है बट उसके बाद मैंने उसको उसकी तरफ देखा भी नहीं, कुछ उसमें हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया. उस पे इतना डस्ट हो गया कि मैंने बाद में जब देखने गई तो उस पे बहुत सारा डस्ट था एंड वो जो अच्छा वाला पीसेस यूज किया था वो खराब हो गया क्योंकि उसकी तरफ देखा ही नहीं, मेंटेन ही किया नहीं. अगर मेंटेन नहीं किया, कोई भी चीज मेंटेन नहीं की तो वो खराब हो जाती है. वैसे ही इम्प्लीमेंट भी करना है, मतलब जहां यूज करना है वहां पे वो इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है.
a systems development life cycle is composed of number of clearly defined and distinct work phases which are used by system engineers. System engineers मतलब जो developers है, testers है, so everyone comes as a system engineer. So system engineers to plan for design, build, test and deliver information systems. So जो भी प्रोजेक्ट आप करोगे उसमें आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट एंड डिलीवर. सो दीज आर द डिस्टिंक्ट, क्लियरली डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट वर्क फेजेस. मतलब ये कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये सारा चीज आपको करना ही पड़ता है. SDLC aims to produce high quality systems that meet or exceed customer expectations based on customer requirements within scheduled timeframes and cost estimates. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे SDLC aims to produce high quality systems that meets or exceeds customer expectation and based on customer requirements within scheduled time frames and cost estimate. अभी मैं यहाँ इस पॉइंट के लिए आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, सो दैट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आप शॉपिंग के लिए गए, जाने वाले हो, आपका बजट डिसाइडेड है, कि मुझे एक 5,000 या 5,000 में मुझे एक फंक्शनल ड्रेस चाहिए विच सूट्स और फिट्स प्रॉपरली मी. मेरा 8 दिन में मेरे एक फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए मुझे जाना है. तो आई वॉन्ट टू बाय दैट फंक्शनल ड्रेस that for that function, and function is on after 8 days. तो आप क्या करोगे? मैम विद इन 5,000 बजट में ड्रेस बाय करने का ट्राई. हाँ, तो पहले एक आप तो कि आपको जो जैसे चाहिए आप रेडीमेड के लिए ढूंढोगे. रेडीमेड नहीं मिल रहा है आपके साइज में, या आपका एक्सपेक्टेशन जैसा है, आपका जैसे पैटर्न आपके दिमाग में है वैसे नहीं मिलेगा, तो व्हाट यू विल प्रेफर? यू कैन गेट इट कस्टमाइज्ड. यस राइट. सो कस्टमाइज करना है मतलब वो भी अगर पूरा स्टिच करना है, तो अगर उसमें कॉस्ट आपकी बहुत बच रही है, बट फिर भी वो आपके टाइम शेड्यूल टाइम में, मतलब आपको नेक्स्ट वीक तक नहीं दे रहा है, तो विल यू बाय? नो. बिकॉज इट इज नॉट मैचिंग और सूटिंग, इट इज नॉट सुटेबल फॉर योर रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट में क्या है आपके, कि वो आपको सूट होना चाहिए, प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए, एंड वो आपको विद इन 8 8 डेज days में. मतलब आपको मिलना चाहिए. सो ये जो है, ये एक्सपेक्टेशन आपकी जो है, वैसे ही कस्टमर की भी एक्सपेक्टेशन होती है. जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नया प्रोसेस स्टार्ट करते हो, नया प्रोजेक्ट करने वाले हो, तभी भी कस्टमर, व्हेन कस्टमर कम्स टू यू, कस्टमर हैज सम एक्सपेक्टेशंस फॉर दैट प्रोजेक्ट, राइट? सो व्हाट कस्टमर वांट्स? कस्टमर वांट्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. एक तो अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए. उसकी एक्सपेक्टेशन जो है, दैट इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन, इट शुड बी विद इन द बजट. मतलब वो डेवलपमेंट टाइम एस्टिमेट्स एज वेल एज कॉस्ट एस्टिमेट, कि मुझे एक साल में, या आई एम टेकिंग अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट एंड सो इट इज एक साल चलने वाला प्रोजेक्ट है. जनरली कई कई प्रोजेक्ट 3-3 साल भी चलते हैं, ऐसे कुछ नहीं है. बट नाउ अ डेज दे हैव क्रिएटेड द टाइमलाइंस, कि फर्स्ट स्टेज में ये हम लोग ये प्रोजेक्ट का ये पार्ट कवर करेंगे, सेकेंड में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे. सो दीज आर द माइलस्टोन्स डिफाइंड बाय द प्रोजेक्ट टीम एज वेल एज कस्टमर. सो यहाँ पे when the customer wants that milestones to be defined, they need to understand the impact. उसका इम्पैक्ट कहाँ होने वाला है, क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट है. तो ये सब चीज हमारे हमें कंसिडर करने चाहिए कि दिस इज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, सो वी शुड ट्राई टू मीट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, और उससे आगे भी जाके हम लोग उसको कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं. सो SDLC हम अगर फॉलो करें, इफ वी फॉलो द SDLC, देन वी एम
to produce a high quality system that meets or exceeds customer expectation based on customer requirement. मतलब उसकी जो requirement है वो हम लोग फुलफिल करेंगे विद इन दैट शेड्यूल टाइम फ्रेम एंड कॉस्ट एस्टिमेट। मतलब उसने जो बजट दिया है उस बजट में टाइम भी और कॉस्ट भी दोनों हो, हम लोग मैच करेंगे एंड देन वी डिलीवर दैट। ये कैसे डिलीवर करेंगे? अगर हम लोग एसडीएलसी फॉलो करें तो हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये पार्ट समझा बेसिकली व्हाट इज एसडीएलसी। Yes, ma'am. सो सैंपल एसडीएलसी में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो दिस इज अ सैंपल प्रोसेस कि इसमें ये चीजें करने ही वाले हैं हम लोग। तो फर्स्ट थिंग, रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट मतलब आपको क्या चाहिए ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? आप क्यों कर रहे हैं? आप कोर्स के लिए आए हो ये, राइट? सो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट टू अचीव गुड जॉब, राइट? दिस इज योर रिक्वायरमेंट। तो what you are doing here? So requirement is a first thing. उसके बाद में you have to, on the basis of that requirement, you have to develop that project, right? So design आएगा कि क्या क्या करना है, इसमें कवर क्या क्या करना है। डिजाइन के बाद आता है कोडिंग। कोडिंग मतलब actually you have to write the, convert that requirement into the code. सो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे अपने कोड लिखा है यहाँ पे। कोड के बाद टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। टेस्टिंग मतलब जैसे हमने रिक्वायरमेंट मिली है हमारे, ये जो रिक्वायरमेंट है आपके हमारे पास, सो ये रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसका कोड हुआ है कि नहीं ये चेक करना है। जैसे रिक्वायरमेंट से डिजाइन बना है, सो ये जो रिक्वायरमेंट आपके पास मिली है उससे डिजाइन बना है। सेम रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट कैसे कितनी इंपॉर्टेंट है वो सोचो। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एंड डिजाइन के बेसिस पे कोड लिखा है। कोड के बाद हम लोग टेस्टिंग करने जाएंगे, तो टेस्टिंग किस बेसिस पे करेंगे? रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही टेस्टिंग करने वाले हैं हम लोग। जो हमें रिक्वायरमेंट मिली है वो जैसे कि वैसे हमारे आउटपुट, एक्सपेक्टेशन, वैलिडेशन सब कुछ उसके हिसाब से ही हम लोग चेक करेंगे। ओके, एंड उसके बाद डिप्लॉयमेंट होगा। डिप्लॉयमेंट मतलब दिस डेवलप प्रोडक्ट और टेस्टेड एंड डेवलप प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल फॉर कस्टमर्स। मतलब कस्टमर्स के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे वी आर कस्टमर्स फॉर, हम लोग अभी ऑनलाइन कहीं शॉपिंग करते हैं तो वी आर कस्टमर्स फॉर दैट वेबसाइट, राइट? ई कॉमर्स, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जैसे बहुत सारे हैं, तो हम लोग कस्टमर है उनके। तो ये डेवलप प्रोडक्ट हमारे लिए कब अवेलेबल होगा? जब डिप्लॉयमेंट होगी तब हमारे लिए अवेलेबल होगा, तब तक हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है? सो हम लोग Yes, ma'am. एक एक स्टेज के अभी, दीज आर द स्टेजेस। इसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस आता है, तो वो हम लोग ये सैंपल प्रोसेस में हमने कंसिडर वो नहीं होता है, बट आगे जाके हम लोग यूज करेंगे। सो हियर देर आर 6 डिस्टिंक्ट फेजेस इन एसडीएलसी। कहीं पे भी जाओ ये मतलब ये चेंज नहीं होता है। सो देर आर 6 distinct phases in every SDLC मॉड्यूल। आपने देखा यहाँ पे टेस्टिंग 4th स्टेज पे है। आई हैव वन क्विक क्वेश्चन फॉर यू। एट व्हाट स्टेज ऑफ एसडीएलसी? अभी तक सिखाया नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि व्हाट यू आर थिंकिंग। एट व्हाट स्टेज ऑफ एसडीएलसी टेस्टिंग कम्स इनटू पिक्चर? At fourth stage. हाँ, यहाँ पे 4th स्टेज पे है। So you remember this, your answer is once we complete our course. Okay? Okay, ma'am. So इसीलिए ये क्वेश्चन था। अभी कुछ पता नहीं है हमें, बट वी वांट टू सी कि हाउ इट चेंजेस। जब लास्ट मॉड्यूल रहेगा ना तब मैं बताऊंगी भी। तब तक आपको मतलब बहुत सारा चीज सीखने वाले हो, बट ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट याद रखो। वी विल चेंज द आंसर।
ओके मैम। सो यहाँ पे हमने 6 फेजेस है। फर्स्ट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, डिजाइन, implementation or coding, testing, deployment, and last stage is maintenance. So these are the 6 stages of SDLC. So we'll see one by one. Requirement gathering. Pooja, if you are not speaking, please be on a mute. Okay. अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वी आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हियर, बट अगर कुछ है होता है तो प्रॉब्लम आता है बाद में। तो अगर कुछ बात करनी है तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक, नो इश्यूज। First is the requirement gathering. So what is this stage and how can we get the requirements? कैसे मिलते हैं हमें requirements? In the form of PPT or PDF PDF, right? or a document. Excuse me. Actually ये जो मतलब हमें ऐसे लगता है कि कस्टमर सारा चीज हमें दे देगा, बट दिस इज नॉट अ ट्रू केस. This phase is very crucial for the success of the project as requirements translate into code. मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कस्टमर, हम लोग कस्टमर के पास जाते, आप ही सोचो, खुद आपके बारे में ही सोचो, आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपको क्या चाहिए, आप कस्टमर को, शॉप ओनर को बताते हो क्या फटाक से, नहीं मुझे ये चाहिए बता दो? No, ma'am. कभी नहीं बताते हम लोग, क्योंकि वी आर कंफ्यूज्ड कि उसको क्या बताना चाहिए। हम लोग बताते नहीं, मतलब इसका रीजन बिहाइंड दैट वी आर कंफ्यूज एग्जैक्टली व्हाट वी शुड टेल और व्हाट वी शुड आस्क दैट शॉप ओनर। सो इसी वजह से वी आर कंफ्यूज्ड। सो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना, उससे कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। बिकॉज बिजनेस एनालिस्ट, द पर्सन हु talks to who communicates with the customer, that person's role is here very important. That person generally business analyst or uh, maybe account, the person who has a knowledge about that system. So अगर कुछ हम लोग अकाउंट बैंक रिलेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो पर्सन हु हैज नॉलेज अबाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री, अगर वैसे है तो ही हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बिकॉज उसमें कैसे होता है, कस्टमर गिव्स यू वन पॉइंट, सो यू नीड टू elaborate that point in your requirement document. So how can we get that full information? So meeting with the managers, मतलब मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट और ये सिस्टम कैसे चलती है, यू शुड गेट दैट इंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट यू कैन टॉक टू मैनेजर्स, देन स्टेक होल्डर्स. व्हाट इज मीन बाय स्टेक होल्डर्स? Don't know, ma'am. Okay, the person around means who uses that, उनका जिनका स्टेक इस प्रोजेक्ट में है and they are keeping a hold on that, so those people are stakeholders. मतलब उसमें एंड यूजर आता है, कभी कभी उसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है, हायर मैनेजमेंट आता है, एंड एक्चुअली वर्कर, जो पर्सन एंड यूजर जो है, दैट कम्स एज अ, even sometimes vendor comes as a stakeholder because they are also a part of that system, right? So stakeholder मतलब जो जिन जिन लोगों का इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारे लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे मतलब क्लोज रिलेटिव्स आर आल्सो अ स्टेक होल्डर्स, राइट? सो दीज आर दीज यू नीड टू, मतलब वो सिस्टम कौन कौन यूज करने वाला है? तो फर्स्ट एंड यूजर, क्योंकि डेटा एंट्री वो करेगा। अगर बैंक का कंसिडर किया एग्जांपल, तो बैंक का जो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं या रिसेप्शनिस्ट एक होते हैं, फिर फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर उसके बाद ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके बाद मैनेजर्स, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर्स होते हैं। सो दीज आर द पीपल हु आर स्टेक होल्डर फॉर दैट बैंकिंग इंडस्ट्री और बैंकिंग प्रोजेक्ट। बट यहाँ पे सबको जो काम करेंगे सब लोग,
तो उनका ये सिस्टम यूज करने का तरीका अलग अलग रहेगा। जो रिसेप्शन पे जो बंदा बैठेगा, बंदा या बंदी जो भी है, तो वो एक्सेस कैसे करेगा? हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम लोन देते हैं तो हाउ वी create how can we calculate the eligibility of that account holder. So ये रिसेप्शनिस्ट का या रिसेप्शन पे जो बंदा बैठेगा उसका काम रहेगा। अगर इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव या जो भी बंदा वहां पे बैठता है, जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल ट्रांजैक्शन करता है, उसका रोल क्या रहेगा? आपका डिपॉजिट, विड्रॉल, देन ट्रांसफर, ये जो टास्क है ये बंदा वो चेक करेगा। बट उसके लिए क्या रहेगा? उसका मैनेजर का, उसका ऑफिसर का अप्रूवल लगेगा उसको हर चीज के लिए। अगर अमाउंट कितनी है उसके बेसिस पे भी और चेंज होता है, राइट? ऑफिसर्स का क्या काम रहेगा? आज के दिन में हाउ मच, हाउ मेनी credit transactions we have performed, how many debit transaction we have performed, and what is my total अमाउंट आई हैव डन। सो डिटेल में उसको आज मैंने खुशबू ने पूजा को 100 रुपए ट्रांसफर किए, उसको इसकी जरूरत नहीं होती है, बट दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। बट टोटल अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन नंबर्स समरी जो है वो ऑफिसर्स के पास रहेगा। ब्रांच उसके अगर अगर मैनेजर के पास जाओगे तो उसका डिटेल में क्या मिलेगा? आज कितने ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डेबिट ट्रांजैक्शन से कितने हैं, परसेंटेज में कितने हैं। फिर उससे मैनेजर के पास जाओगे तो आज मेरे टोटल बैंक में कितने डिपॉजिट हुए, फिक्स डिपॉजिट कितने हुए, कितने विड्रॉल हुए, कितने कितने परसेंटेज वाइज उसके पास सब एक ही डैशबोर्ड पे सारा इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा, राइट? सो Yes, हर ma'am. एक पर्सन का सिस्टम की तरफ देखने का नजरिया अलग अलग होता है, एंड वो कैसे उसको चाहिए ये हमें उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। एंड जब तक आप उनके साथ नहीं बैठोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच स्टेक होल्डर फ्रॉम दैट सिस्टम। सो यू नीड टू गेट दैट इंफॉर्मेशन कि ये स्टेक होल्डर कौन है, पहले ये समझ के लेना है। हु इज गोइंग टू यूज द सिस्टम, हाउ दे विल यूज दिस सिस्टम, एंड व्हाट डेटा शुड बी द इनपुट टू द सिस्टम। मतलब इसमें इनपुट क्या जाने वाला है, इससे आउटपुट मुझे क्या मिलने वाला है, व्हाट डेटा शुड बी प्रोसेस्ड एज आउटपुट बाय द सिस्टम। हम लोग IRCTC का टिकट बुक करने गए, राइट? तो उसमें क्या क्या इनपुट एंड आउटपुट रहेगा? Ma'am, train नंबर, location, train number, location. स्टेशन, हाउ मेनी Right, पीपल आर गोइंग टू ट्रेवल, उनके डिटेल्स लगेंगे, राइट? right. एंड उसके बाद आप प्रोसेस क्या करोगे? कंफर्मेशन, आप कंफर्म करोगे एंड देन उसके बाद पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद व्हाट इज आउटपुट? Ticket done, Ticket confirmation. done, confirmation. You receive the message and tickets are booked and amount is deducted from your account. So ये जो है, so here this process, why you, how you know? Because you have done this process, right? So आपको Right, ये कैसे पता है? तो आपको उस आपने जब काम किया है वहां पे, मतलब आपने कभी टिकट बुक किया होगा, अगर उसके लिए कुछ कंसेशंस है क्या? इफ यू आर सीनियर सिटीजन तो आपको टिकट में कंसेशन मिलेगा, आप नॉर्मल पैसेंजर है तो आपको कभी टिकट में कंसेशन नहीं मिलेगा। सो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स में आती है। तो यू, हाउ कैन यू गेट दैट प्रॉपर रिक्वायरमेंट? कि आपको ये पता चलेगा कि अभी ये सिस्टम कौन यूज करने वाला है, हु इज गोइंग टू यूज दिस सिस्टम। IRCTC ऐप हमने देखा, कंसिडर किया, तो ये कौन कौन यूज करने वाला है? एवरीबॉडी। हाउ दे विल यूज? एक तो मोबाइल से करेंगे या फिर कंप्यूटर से laptop. करेंगे, हाँ, Computer. या फिर आजकल वो सेंटर्स है उनके, वहीं से करेंगे। तो ये अलग अलग हो गया। तो स्टेक होल्डर कौन कौन हो गए? ईच इंडिविजुअल,
that is the one thing. Agent is the another stakeholder. Then बुकिंग, अब हम लोग वहां पे जाके सिस्टम पे जाके उनके रेलवे स्टेशन पे जाके हम लोग बुक करते हैं कभी कभी, राइट? So booking counters. So that is also one of the stakeholders. So railway uh, officers, agents, individuals. So these are the stakeholders of IRCTC. Hmm? समझे? Yes, ma'am. So यहाँ पे हम लोग क्या क्या करते हैं? So we used to following techniques are used for requirement gathering. Identify and capture stakeholders' requirement using customer interview, सर्वे, मतलब उनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये कैसे करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो बताना भूल जाते हैं, तो वी क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनरीज क्रिएट करते हैं, सर्वेज क्रिएट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी गेट दैट इंफॉर्मेशन. Build multiple use cases to describe each action that a user will take into the new system. I'll explain this point later. And prototypes can be built to show the client what the end product will look like. मतलब ये हम लोग डमी जैसे प्रोजेक्ट करते हैं ना, प्रोटोटाइप मतलब उसकी क्या बोलते हैं, डमी डमी ही बोलते हैं बेसिकली, कि हमें Rough idea something. रफ आइडिया, बट उसका जस्ट अभी कैसे सिस्टम डेवलप करते हैं तो हम लोग सिस्टम उसके बॉक्सेस वगैरह है क्रिएट करते हैं, बट उसका पिक्चर क्रिएट करते हैं हम लोग, प्रोटोटाइप दिखाते हैं कि वर्ड अगर कुछ अभी आजकल नाउ एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, एडिटिंग जैसे कोरल ड्रॉ, इसमें स्क्रीन क्रिएट करते हैं, तो वैसे वो एंड प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, तो वो उसका विजुअल इफेक्ट देके हम लोग दिखा सकते हैं कस्टमर को कि दिस विल लुक लाइक दिस. सो बेसिकली उसका स्क्रीन डिजाइन करके हाउ दैट यूआई विल लुक लाइक, सो ये दिखाते हैं हम लोग. एक्चुअली डेवलपमेंट मतलब थोड़ा बहुत चीज करके दिखाते हैं, बट मोस्टली दिस इज अ विजुअल इफेक्ट so that customer can see and think कि what needs to be, if it is good or they want some changes in that. So this is the and हमें भी अगर हमने उसका डेमो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए. when you see sample फ्लैट, हाँ अभी फ्लैट बुकिंग करने जाते हो तो पूरा प्रोजेक्ट मतलब पूरा प्रोजेक्ट वैसे ही बनने वाला है ऐसे नहीं है, बट they create some rough idea and rough design for each flat or the sample flat. So sample flat is ready with full furnished sample flat is ready, ऐसे बोलते हैं हम लोग जाते हैं तो देखने के लिए. तो what they have done, they create that visual effects in that flat so that people will get an idea how this system will look like, how that newly created or newly developed system flat will look like. So इसीलिए प्रोटोटाइप देखने के बाद आपको पता चलता है कि कैसे होने वाला है प्रोजेक्ट. If they have any changes, any suggestions, they can tell that immediately. And the second point is build multiple use cases to describe each action that a user will take in the new system. मतलब हम लोग नया सिस्टम बनाने वाले हैं तो वो सिस्टम में कौन कौन से एक ही फंक्शन हमने लिया तो वो फंक्शन अलग अलग इसमें से कैसे चलेगा, इसके लिए मैं एग्जांपल बताती हूँ सो दैट आपको इसका यूज केस मतलब वो यूज कैसे करने वाले हैं हम लोग. एनी एक कोई भी केस है तो हम लोग वो कैसे कंसिडर करेंगे. जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये एग्जांपल हमेशा मेरे दिमाग में आता है. हमने हाथ में मोबाइल लिया है, सबके पास स्मार्टफोन है, राइट? Yes, ma'am. हाँ,
तो आप मोबाइल अनलॉक करते हैं, लॉक करते हैं, Yes, ma'am. राइट? तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट, लॉक अनलॉक के। एक तो फेस अनलॉक है, फिंगर अनलॉक है, पिन है, पैटर्न है, पासवर्ड है, एंड अगर कुछ भी नहीं है तो जस्ट स्वाइप अप, your phone is unlocked. So there are multiple, these are the different ways to unlock your phone, right? Smartphone. Yes. तो ये जो है, so these are different use cases to unlock your phone. अगर आपको ये फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है तो आपको ये सारा चीज यूज करके आपको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? मतलब एक पिन हो गया, अनलॉक मतलब जस्ट स्वाइप अप देन अनलॉक, दैट इज अ फर्स्ट केस। पिन, पासवर्ड, पैटर्न, फिंगर अनलॉक, फेस अनलॉक, ये these are six methods or six ways to use, 6 ways to unlock your phone. And these 6 methods you need to use and test so that you can say that a phone unlock feature is 100% tested and it is working fine. Okay? ये समझ में आया कि build multiple use cases. Yes, ma'am. So ये first requirement gathering and analysis, इसमें we have captured the requirements, right, with the help of these whatever points we have discussed right now. So requirement specification document is created at the end of this phase. मतलब हमने सबसे सारा information हमारे पास ले लिया. We have created one document. In that document, we have added all these information, and this document, requirement specification document, that is used as a guideline document for full project. मतलब till you complete your project, this document is referred throughout the SDLC. मैंने बताया पहले कि वो डिजाइन करने के लिए भी रिक्वायरमेंट चाहिए, कोडिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट चाहिए, टेस्टिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट चाहिए, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे आप बता सकते हो. सो एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस इट इज रिक्वायर्ड. बिकॉज अगर आपने कुछ रिक्वायरमेंट चेंज की या मॉडिफाई कर रहे हो, आपको वो नया रिक्वायरमेंट चाहिए, तो यू नीड टू कंपेयर दैट कि पहले रिक्वायरमेंट दी थी तब ये पॉइंट था क्या, नहीं है, तो यू हैव टू डेवलप दैट. सो दिस इज deliverable. Requirement specification document is created at the end of this phase and delivered at the end of the requirement gathering and analysis phase, and it is used as a guideline document for next phases of the model. So this document has all the requirements specified from the business perspective. जो भी आप बिजनेस पर्सपेक्टिव रिक्वायरमेंट दिए हैं वो सारे इसमें ये डॉक्यूमेंट में रहते हैं. So this is the first phase. And what is the deliverable? Requirement specification document is a deliverable at this stage. Right? ये remember, deliverables हर चीज के लिए, हर फेज के लिए deliverable होता है, and this deliverable is treated as an input for design phase. Okay? So software design is prepared from the requirement specification which were created or which were studied in the first phase. मतलब हमने अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज में जो रिक्वायरमेंट्स शेयर किए थे उनके बेसिस पे ये डिजाइन बनेगा. सो टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय आर्किटेक्ट मतलब टेक्निकल आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, and this document are prepared by technical architects and lead developers. मतलब जो भी इस सिस्टम के लिए अवेलेबल है, जो
ये जो आर्किटेक्ट एंड लीड डेवलपर्स, सो दे कैन क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट मतलब ये डिजाइन कैसे बनना चाहिए, इसीलिए रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये डॉक्यूमेंट बनता है, टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट। उसके बाद सिस्टम डिजाइन डिफाइंस द मॉड्यूल, इंटरफेसेस, आर्किटेक्चरल डिजाइन, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, वैलिडेशन प्रोसेस, डेटा, मैम, एक्सेट्रा। हाँ। ये जो डिजाइन पार्ट है ये भी टेस्टिंग का ही वो मतलब पार्ट होता है क्या? नहीं टेस्टर को? नहीं नहीं नहीं, डिजाइन मतलब ये टेक्निकल आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, उनका उनका काम होता है। ये हमें एक्चुअली समझ के लेना है, क्योंकि उसके बाद में डिजाइन के बेसिस पे हम लोग मॉड्यूल्स हमें मिलने वाले होते हैं। ओके मैम। सो ये जो डिजाइन है ना, ये डेवलपर्स मतलब टेक्निकल आर्किटेक्ट्स एंड लीड डेवलपर्स के लिए है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, सी। So यस मैम। technical design documents are prepared by architects and lead developers. ओके कोडिंग जो करने वाले हैं ना, सीनियर डेवलपर्स होते हैं कि वह लीड डेवलपर्स, दे कैन क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट। हमें ओके। कुछ नहीं यहाँ पे करना होता है। हम्म। सिस्टम डिजाइन, सॉरी, सिस्टम डिजाइन, ये जो पार्ट है उसके बाद पहले की ओवरऑल ये प्रोसेस, मतलब ये सिस्टम कैसे बनेगी ना, इसके लिए टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सो TDD, टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय आर्किटेक्ट्स एंड लीड डेवलपर्स। उसके बाद सिस्टम डिजाइन डिफाइंस द मॉड्यूल। उसके बाद जो हम लोग ये ओवरऑल जैसे प्लान बनाते हैं, घर बनाते समय घर का प्लान रहेगा, ये एरिया हमारा है, उसमें ये इतना बिल्टअप रहेगा, इतना फ्री स्पेस रहेगा, एंड हर घर के लिए अंदर घर में कि कितने रूम्स रहेंगे, मतलब बिल्टअप कितना रहेगा, फ्री स्पेस कितना रहेगा, ये होगा। उसके बाद कितने रूम्स बनेंगे, हर रूम का डिटेलिंग क्या होगा। सो ये जो चीज हम लोग करते हैं नॉर्मल केस में, वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट ने सिस्टम, इसके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होगी, ये मॉड्यूल यूज होगा, एंड बाकी डिजाइन आप सोचो उसके बारे में, डेवलपर्स को बताते हैं। सो डेवलपर विल स्टार्ट थिंकिंग कि इसमें मॉड्यूल्स कौन कौन से रहेंगे, इंटरफेसेस कौन से रहेंगे, आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होगा, यूजर कॉन्फ़िगरेशंस क्या रहेंगे, वैलिडेशन प्रोसेस कैसी रहेगी, वैलिडेशन के बाद डेटा क्या कौन कौन सा यूज होगा, मतलब कुछ मास्टर डेटा लगेगा क्या, ये नॉर्मल डेटा से काम होने वाला है। ये सारा चीज यहाँ पे सिस्टम डिजाइन के अंदर डिजाइन या डेवलप होता है। हम्म? समझा ये पॉइंट? यस मैम। मतलब ये मॉड्यूल्स एंड इंटरफेसेस, ये इंटरफेसेस मतलब दो मॉड्यूल्स को कनेक्ट करते हैं या दो सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हम लोग रजिस्टर करते हैं, हम लोग फर्स्ट हम खुद को, राइट, न्यू यूजर करके रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमारा फोन नंबर या मेल एड्रेस, एंड देन लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, दूसरा मॉड्यूल कौन सा होता है, यू कैन सर्च प्रोडक्ट, add that product to the cart, राइट। सो ये जो आप डेवलप करते हैं कि अलग अलग मॉड्यूल्स डेवलप करना, उसके बाद मॉड्यूल्स डेवलप होने के बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या रहेंगे, कि ये सेटिंग करना है, सेटिंग के बाद वो कैसे चलेगा, उसको वैलिडेशंस क्या होंगे। अगर वैलिडेशंस मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर एज है, वो सीनियर सिटीजन है, कंसिडर करना है, तो उसका एज 60 कंप्लीट होगा तो ही वो सीनियर सिटीजन करके ट्रीट होगा। अगर उसका एज 60 बिलो 60 है तो वो सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता, राइट। सो ये जो चीजें हैं ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। Then technical requirements will detail database tables to be added, new translations to be defined, security process and hardware requirements. So ये सारा चीज as a
as a developer, senior developer, or development lead, you have to follow this. ठीक है? यस मैम। समझ में आ रहा है या फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है? आ रहा है मैम समझ में। पूजा? समझ रहे हैं? हाँ, मतलब फास्ट नहीं हो रहा है ना, स्लो भी नहीं है ना, नहीं बोर नहीं हो रहे ना? नहीं। हाँ, ओ मैम। ठीक है। मैं मतलब मुझे मुझे मेरे इसमें थोड़ा चेंज करना है, तो इसीलिए पूछा मैंने। तो इसमें हम लोग डिलीवर क्या करेंगे? हमने क्या किया था फर्स्ट फेज में? डिलीवर क्या किया था? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिलीवर किया था। उसके बेसिस पे डिजाइन किया। डिजाइन क्या किया? आर्किटेक्चरल प्लान किया फर्स्ट। उसके बाद डेटाबेस डिजाइन किया कि कौन कौन से टेबल होंगे, कौन कौन से हम्म ये टेबल में क्या क्या स्टोर होगा। सो उसके बेसिस पे डेटाबेस का डिजाइन होगा। स्क्रीन यूआई पे क्या क्या दिखना चाहिए? हम कौन सी भी वेबसाइट देखते हैं तो फर्स्ट उसमें क्या क्या दिखता है? लॉगिन होता है क्या? सो ये जो है डिजाइन हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। सो ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है? सो उसमें ये सारा चीज यहाँ पे ये प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन भी हम लोग डिलीवर करते हैं। सो कि उनके बाद एक पता चलेगा, कोई भी डेवलपर काम करे तो उसको भी इमिजिएटली ये पता चलना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट इसका है। एंड इसमें ये चीज इस पे सेकेंड फेज में, डिजाइन फेज में, यू हैव टू डिलीवर these following documents, and these based on these documents we start next phase. So ये जो फेज है दूसरी फेज, ये इसमें आर्किटेक्चरल डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, स्क्रीन डिजाइन एंड प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन मिलने के बाद डेवलपर स्टार्ट करता है कोडिंग. So actual coding and unit testing is done by developers or development team. So based on their system design documents, they create or start writing a code. So what requirements we have captured, that requirements are translated into the system code. So this is normally the longest phase of SDLC, right? So longest phase में क्यों? जितना प्रोजेक्ट बड़ा रहेगा उतना कोड के रिक्वायरमेंट जो है लिखने के लिए टाइम लगेगा वो ज्यादा रहेगा. ठीक है? सो उसके बाद द फिनिश प्रोडक्ट और द सोर्स कोड, मतलब डेवलपर्स क्या करते हैं? कोड लिखते हैं. तो कोड लिखने के बाद जो कोड आपको मिलेगा, सो दैट फिनिश प्रोडक्ट इज द फाइनल इनपुट फॉर द टेस्टिंग फेज. मतलब हम लोग क्या टेस्ट करेंगे? अगर डेवलपर ने कोड लिखा तो हम लोग टेस्ट करेंगे, अगर लिखा ही नहीं तो हम लोग कुछ टेस्ट कर सकते हैं क्या? नो मैम। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डेवलपर, रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन के बेसिस पे डेवलपर विल राइट द कोड. एंड हम लोग वो यूनिट टेस्टेड कोड जो उन्होंने हमें देना चाहिए वो खुद खुद पहले चेक करना चाहिए ये चल रहा है या नहीं चल रहा है. सो यूनिट टेस्टेड कोड इज डिलीवर्ड टू टेस्टिंग फेज so that deliverables of this phase are वर्किंग कोड बेस, मतलब जो कोड लिखा है वो कोड शेयर करेंगे. उसके बाद यूनिट लेवल टेस्टिंग रिपोर्ट, मतलब उन्होंने यूनिट टेस्टिंग किया है तो दैट रिपोर्ट यू हैव टू कैप्चर. ठीक है? यस मैम। ये फेज समझा क्या? यस मैम। तो ये अभी नेक्स्ट फेज जो है कोडिंग के बाद आता है टेस्टिंग. सो टेस्टिंग में हम लोग व्हाट इज द इनपुट फॉर दैट फेज? द कोड यूनिट लेवल यूनिट टेस्टेड कोड. So यहाँ पे testing phase is the fourth phase in SDLC, and this is the developed code is tested against requirement. हम लोग डेवलपर ने कोड दिया तो हमें कोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कोड डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें देखना है. The developed code is tested against the requirement to make sure that
इट इज सेटिस्फाइंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है नहीं हो रही है, हमें चेक करनी। Once the application is migrated to a test environment, different types of testing environment, different types of testing were performed on the software. ये पॉइंट समझा? मैम टेस्ट एनवायरनमेंट। करेक्ट। सो जैसे एप्लीकेशन टेस्ट एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय होता है, मतलब हम लोग अभी कोई भी एक्सेस करते, कोई भी वेबसाइट, जैसे gmail.com, तुम जीमेल एक्सेस करते हो, मतलब कैसे करते हो? यू लॉग इन टू दैट वेबसाइट, you access your mails and you can see that content. Correct? यस मैम। हाँ। So this कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, जब भी वो प्रोजेक्ट टेस्ट एनवायरनमेंट पे आता है तब आप टेस्ट करोगे तो ही उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बिकॉज डेवलपमेंट पे एनवायरनमेंट पे टेस्ट करके फायदा नहीं हो, क्यों होता है? बिकॉज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता है एंड हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट यू टेस्ट दैट प्रोडक्ट विदाउट रिक्वायरमेंट। इसीलिए रिक्वायरमेंट तो चाहिए चाहिए आपके पास, कोई भी हो। ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, देन दैट पर्सन हैज good knowledge of requirement. The person who started testing, that person has a good knowledge of testing, and on the basis of that, on the basis of the requirement, you can start analyzing the output. And at that time, you may come across in such a you may come across in situations like that expected result and actual result is different. So in that case, you can decide whether this product is developed code is working as per requirements or not. If it is not working, you need to report that out, what we can say, as a defect. Sorry. When we say that requirement, मतलब मेरा expectation है, अगर कुछ मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ तो मैंने बोला कि मुझे मोबाइल का ब्लूटूथ चाहिए, एंड उन्होंने मुझे वायरलेस नेक बैंड दे दिया। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था? ब्लूटूथ के लिए मुझे ये चलना चाहिए प्रॉपर, राइट? So at this point, defect may found and more work may be required in the analysis, design or coding. मतलब जब भी आप कुछ कंपेयर करते हो कि आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि मुझे 90% मार्क मिलेंगे, बट आपको एक्चुअल में अगर 89 मिले, तो आपको कंपेयर, मतलब एक्चुअल क्या था एंड एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड मेरा था कि 95, बट एक्चुअल में मुझे 89 मिले। So this is nothing but a क्या बोलते हैं उसका, डिफेक्ट है ये। आपने मंगाया था एक्सेल साइज एक ड्रेस के लिए, बट आपको मिला स्मॉल साइज, सो इवन दैट इज अ डिफेक्ट, राइट? यस Yes. मैम। सो ये डिफेक्ट है। एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल रिजल्ट कंपेयर करना है। सो आगे आपको डिफेक्ट के ऊपर एक एक अलग अलग मॉड्यूल है, आपको तब पता चलेगा डिटेल में, बट एट दिस पॉइंट यू कैन रिमेंबर दैट when there is a difference in actual result and expected result, then there is a defect, you can say. वो फिक्स करना है, बिकॉज प्रॉब्लम है वो। डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलग है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट अलग है। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, करेक्ट दैट प्रॉब्लम। Once sign off is obtained by all relevant parties, implementation and deployment can begin. मतलब टेस्टिंग होने के बाद
सब लोगों ने बोल दिया कि नाउ दिस प्रोजेक्ट इज गुड एंड वी कैन गो अहेड फर्दर। सो उसके बाद डिप्लॉयमेंट होता है। डिप्लॉयमेंट कहाँ होता है? कस्टमर के एनवायरनमेंट पे। एंड देन कस्टमर स्टार्ट टेस्टिंग, एंड यूजर ऑफ द कस्टमर दे विल स्टार्ट टेस्टिंग, एंड उसके बाद हम लोग मेंटेनेंस में जाते हैं। तो ये यहाँ इसमें डिलीवरेबल्स क्या क्या है वो देखेंगे अभी। completely tested code is ready for delivery to the client। जो जो आपने काम किया था, completely tested कोड, जो कोड आपने टेस्ट किया है वही कोड कस्टमर को दे देंगे हम लोग, बिकॉज वी आर श्योर, वी आर कॉन्फिडेंट that we have tested that product very well। ठीक है। देन जैसे हमें रिक्वायरमेंट मिलते हैं, डेवलपर क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, सिस्टम डिजाइन। उसके बाद कोड लिखते हैं, कोड के बाद टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉय होता है। सो डिप्लॉय होने के पहले हम लोग जब टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद टेस्ट सिनेरियोज लिखे होते हैं, देन टेस्ट केसेस, टेस्ट स्क्रिप्ट्स म्हणजे ऑटोमेशन, टेस्ट केसेस म्हणजे we can give the step-by-step instructions to the user so that it will be clear-cut instructions to the end user। ठीक है। एंड Yes, यहाँ ma'am. पे एंड में समरी रिपोर्ट बनाते हैं, टेस्ट समरी रिपोर्ट और टेस्ट रिजल्ट्स। दैट रिजल्ट्स यू हैव टू शेयर विथ ईच स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। मैम ये टेस्ट सिनारियोस का एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। टेस्ट सिनेरियोज मतलब हम लोग यहाँ पे वन लाइनर इंग्लिश स्टेटमेंट कि मुझे वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी, सो दिस इज वन सिनेरियो। उसमें बहुत सारे टेस्ट कंडीशंस आते हैं कि इसमें इनवैलिड पासवर्ड आ गया, यूजर नेम वैलिड, इनवैलिड पासवर्ड। इसमें कहीं इसमें दूसरा सिनेरियो आ जाएगा कि सिनेरियो उसमें टेस्ट कंडीशन दूसरी क्या करोगे कि बोथ इनवैलिड, यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ इनवैलिड। थर्ड सिनेरियो क्या आएगा? यू कैन ऐड some functionalities or some conditions in that requirement। मतलब अगर आपने कंसिडर किया क्या, स्कूल का आपका प्री प्राइमरी स्कूल है, राइट? तो प्री प्राइमरी स्कूल के लिए कौन कौन, व्हाट इज योर एंट्री क्राइटेरिया? Ma'am, age. एज, करेक्ट। बर्थ डेट के ऊपर आप फिल्टर करोगे कि ये एज क्राइटेरिया, अगर ये एज से ये एज तक, मतलब 3 साल के, 2.5 साल से 3 साल, 3.5 साल तक इन सारे बच्चों को एडमिशन मिल सकती है। सो यहाँ पे एज क्राइटेरिया होता है। सो ये कंडीशंस हमें समझ के लेके अप्लाई करने हैं। सो सिनेरियो इज अ नॉर्मल सिंगल लाइन इंग्लिश स्टेटमेंट्स, लॉजिकल स्टेटमेंट्स, वो कन्वर्ट होके मल्टीपल कंडीशंस आते हैं, एंड हर कंडीशन के लिए हम लोग एक टेस्ट केस लिखते हैं। Okay, ma'am. समझ में आया? ओके, यस। एंड आगे एक मॉड्यूल है टेस्ट डिजाइन, हमारे लिए भी है। मतलब ये हम लोग जस्ट ओवरव्यू है, तो आपको अगर कुछ नहीं समझा तो पूछ लो, बट इसमें डिटेल हम लोग आगे देखने वाले हैं। सिनेरियोज, केसेस, टेस्ट स्क्रिप्ट्स एंड देन टेस्ट डिफेक्ट रिपोर्ट, ये सारा चीज हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं। एंड देन द फिफ्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम लोगों ने अभी तक डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, देन आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग यहाँ पे ये जो डिलीवरेबल्स हमने क्रिएट किए थे, टेस्ट केसेस है, टेस्ट प्लान है, टेस्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, टेस्ट रिजल्ट्स है, टेस्ट कंपोनेंट्स है एंड डिफेक्ट्स है। सो ये सारे डिलीवरेबल्स
these deliverables are input for the next phase. Next phase is, what is the next phase? Deployment. Implementation or deployment. So this, जब testing complete होता है, then you are ready to implement or deploy that project basically at customer side. The size of the project will determine the complexity of the deployment. मतलब जितना बड़ा project, उसको complexity you can define the role, how you can configure that, and sorry. So size of the project will determine the complexity of the project. अगर बहुत बड़ा project है, suppose एक SBI का example लेते हैं बैंक का. SBI बैंक जो है वो all over world है, but we want to test that product and test that product on the basis of requirement. So ये अगर वो चल रहा है तो you can use that with the help of your requirement, right? So sometimes ऐसे होता है कि जो बंदा सामने बैठा है उसको कुछ भी पता नहीं है, तो you have to give a training. So the training can be given to the customers or stakeholders, right? And एक साथ सारा का सारा प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय नहीं करोगे. जो भी आपके ने पहले थोड़ा सैंपल करके चेक करोगे कि ये चलता है कि नहीं चलता है, एंड उसके बाद आप देखोगे कि ये प्रॉपरली डिप्लॉय हो गया है, तो वी कैन कंप्लीट दैट, राइट? Yes, ma'am. मतलब थोड़ा थोड़ा पहले चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. अगर चल रहा है तो आगे सारा पूरा डिप्लॉय कर देंगे. मतलब एक ब्रांच के लिए हम लोग करके देखेंगे, फिर बाद में वो चला तो सबके लिए हम लोग कर देंगे. एंड उसके बाद उसमें ये कैसे डेवलप किया है उसके रिलीज नोट्स बनाते हैं एंड यूजर मैनुअल्स. रिलीज नोट्स मतलब इसमें क्या क्या टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशंस है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज हमने ऐड किए हैं. We are giving a special instructions or special notes to the end user, to the next user basically we can say. And user manuals means ये तो सभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, सभी मशीन्स के साथ आता है कि दिस इज योर यूजर गाइड एंड दिस इज योर. Yes, ma'am. सो आपके कोई भी इंस्टॉलेशन होता है आपका, आपने कभी वॉशिंग मशीन खरीदा, कभी मिक्सर खरीदा, तो वॉशिंग मशीन के लिए तो डेमो हमेशा होता है, एंड दे प्रोवाइड यू द रिलीज नोट्स एंड यूजर मैनुअल्स एज वेल. सो यू नीड टू गो थ्रू दैट रिक्वायरमेंट एंड सी this that release notes and user manual is provided along with your code. मतलब जो डिप्लॉय करेंगे उसके बाद ये रिलीज नोट्स भी आपके साथ एंड यूजर मैनुअल्स आर आल्सो प्रोवाइडेड. ये देना ही है. सो दिस इज अ डिलीवरेबल. एंड उसके बाद आता है मेंटेनेंस फेज. मेंटेनेंस फेज में ये डिलीवरेबल्स, ये release notes and user manual, that deliverable of the implementation phase is treated as an input for maintenance phase. So maintenance phase में क्या होता है, जो develop project है उसमें कुछ problem आता है, तो you have to fix that problem and deliver that as a what we can say. So ये सारा fix करके आपको देना है. मतलब प्रॉब्लम है तो फिक्स करना है, उसके लिए रिपोर्ट करो डिफेक्ट. अगर प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गाइड देम दैट व्हाट इज द बेसिक चेंज यू हैव टू परफॉर्म. जैसे सेटिंग्स है कुछ, तो यू कैन suggest that setting to the customer and then we perform. So once customers start using the developed system, they may face some actual real life issues or problems, and this needs to be fixed
on timely basis. In the maintenance phase, the software vendor provides the आफ्टर सेल्फ सर्विस टू इट्स क्लाइंट. मतलब वारंटी पीरियड में कैसे रहता है, हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर हमने मोबाइल लिया तो वारंटी पीरियड में है, 1 साल का वारंटी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं कस्टमर के पास जाऊंगी, ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, फिक्स करके दे दो. सो कस्टमर विल गिव दैट, राइट. सो यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होती है कि उन्होंने काम किया है तो उसमें प्रॉब्लम से आएंगे तो फिक्स करके हमें डिलीवर करनी. And here deliverables are change request documents or code changes. मतलब ये जो है इस here we deliver this requirement change request document कि जो आपको लगता है कि ये नहीं है अभी बट मुझे नेक्स्ट इसमें चाहिए, तो दिस इज अ चेंज रिक्वेस्ट. कि जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी है, बेसिक फंक्शनैलिटी में यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, मैंने लॉगिन कर रही, बट मेरे इसमें ओटीपी आना चाहिए, तो आई हैव एडेड दैट न्यू फीचर. सो दैट फीचर इज यू हैव टू डिलीवर. बट चेंज रिक्वेस्ट एंड डिफेक्ट में प्रॉब्लम क्या है, क्या डिफरेंस है? तो चेंज रिक्वेस्ट ये नई रिक्वायरमेंट है, इट इज ट्रीटेड एज अ न्यू रिक्वायरमेंट, whereas defect is treated as a defect to the existing functionality. जो existing functionality है उसमें ये डिफेक्ट आता है. ठीक है, समझा? Yes, ma'am. So these are 6 distinct phases and इसमें क्या क्या याद रखना है? तो deliverables याद रखना है. So अभी मेंटेनेंस के लिए इनपुट फेज, इनपुट क्या रहेगा? रिलीज नोट्स एंड यूजर मैन्युअल. इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनपुट क्या रहेगा? Test reports. यस. एंड इसके पहले ये हर एक फेज के लिए जो इनपुट है ये डिपेंडेंट है, ये साइकिल है, कंप्लीट साइकिल है, एक के बाद एक, एक के बाद एक. सो आप कुछ भी करो ये ऐसे ही चेंज होते रहता है. तो ये जो है ये SDLC है, हमने अभी देखा. समझ में आया? डाउट है कुछ तो पूछो. I'll take a pause here and then we can start waterfall model and we complete that waterfall model and then we stop. कुछ डाउट है? No, ma'am. नो मैम. Okay. Now we will start with various models of SDLC. जैसे ये लाइफ साइकिल है, राइट. सो एक फेज के बाद दूसरी फेज होती है, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे. तो ये हमेशा कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड मेथड चाहिए, राइट. तो यहाँ पे तो इट इज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस. मतलब पहले ऐसे कुछ नहीं था, स्टार्ट करो काम, वो सालों साल चलता रहता था, बट वो ट्रैक ही नहीं होता था कहीं पे, इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे. तो ये वाटरफॉल मॉडल स्टार्ट हुआ कि पहले क्या करना है, फिर दूसरा क्या करना है, ये कंप्लीट हो गया तो दूसरे के जाओ, दूसरी फेज कंप्लीट हो गई तीसरे के जाओ. मतलब रिक्वायरमेंट का पहले कैप्चर करो, सब रिक्वायरमेंट फ्रीज करो, फिर डिजाइन के लिए जाओ, डिजाइन कंप्लीट हो गया देन कोडिंग के लिए जाओ, कोडिंग कंप्लीट हो गया टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मेंटेनेंस में जाओ. सो ये इसमें बहुत टाइम लगता था, बट प्रोजेक्ट ट्रैक होता था कि अगर कुछ चेंज हो गया तो सब जगह वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मेथड यूजफुल थी. सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल. वाटरफॉल आपने सबने देखा है, राइट. Yes, ma'am. सो वो उसका फ्लो कैसे रहता है? Top to bottom. टॉप टू बॉटम. इसके बीच में तुम ब्रेक कर सकते हो क्या कहीं पे? नो. No, ma'am.
You cannot break that flow of water. अगर आपको करना है तो you have to start again from the top, right? जहां से वो पहले स्टार्ट होता है वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. सिंपल है, इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं है. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज. इन दिस मॉडल ईच फेज, मतलब जो हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये जो 6 फेजेस है, ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड फुल्ली बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन स्टार्ट और नेक्स्ट फेज कैन बिगिन. पहली फेज खत्म हो गई तो ही आप दूसरे फेज में जा सकते हो, दूसरी खत्म हो गई तो ही तीसरे में जा सकते हो. इन बिटवीन ऐसे कहीं पे 2 फेज पैरेलली नहीं चल सकते, राइट? सो at the end of each phase a review takes place to determine if the project is on the right path and whether or not to continue or discard the project. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट किया, इसके बाद एंड में सब रिक्वायरमेंट कैप्चर करने के बाद रिव्यू होता है, मतलब डिस्कशन होता है, सब लोग उसमें बैठते हैं. एवरीवन इज रिव्यूइंग दैट रिक्वायरमेंट and they discuss whether the captured requirement is correct. If it is not correct, they discard. Again, you have to capture or change that requirements. So ये इसकी वजह से क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है. जब तक ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होते तब तक आप आगे वाला काम स्टार्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज अ क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट. बट unless and until you finalize this, you cannot go for the next phase. वैसे waterfall model phases do not overlap each other. So they cannot start parallelly, they cannot overlap. It is sequential. Once one phase is completed, then you go for the next phase. If you see the diagram, you can understand it very well. See, this is रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, उसके बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट एंड उसके बाद मेंटेनेंस. सो यहाँ पे कोई भी फेज में रिव्यू होता है, हर फेज में रिव्यू होता है. तो रिव्यू होने के बाद अगर रिव्यू मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, रिव्यू सक्सेसफुल हुआ, तो यू गो फॉर द नेक्स्ट फेज. बट रिव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो you come back and go back to the requirement. मतलब you start from the top. Implementation successful हुआ तो testing में जाओगे, नहीं हुआ तो you can go back to requirement. Testing भी successful हुआ तो deployment में जाओगे, नहीं हुआ तो you go back to the requirement and verify what you have tested is as per that requirement. डिप्लॉयमेंट के साथ भी वही, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हुआ तो मेंटेनेंस में जाएगा, डिप्लॉयमेंट फेल हुआ या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आए तो यू गो बैक टू द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. इवन एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस, इफ everything is working as per the requirements, then you continue, or you can ask for a change request. Then you again start the same process here. So this method or this model is known as waterfall model. What are the advantages and disadvantages here? It is very simple to use and understand, but here we cannot have a overlap. It is a sequential model, right? Linear sequential model. And in this model, each phase must be completed before the next phase can begin.